سورہ بقرہ آیات نمبر 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم لی بعد عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الہین۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی بعد عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الہین۔ یہ انگلش میں قرآن پاک، یہ اردو میں ترجمہ۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتارا تھا نہ بنا کے، بہت فوقیت دی تھی، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، تو پھر ان کو جنت میں بھیجا تھا تو ایک درخت سے منع کیا تھا، پر شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ وہ شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا کہنے کا یہ ہوا کہ وہ فرشتے کو شیطان بنا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، پر حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حضرت حوا نے ان کا کہنا نہ مانا، اسی درخت کے پاس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت ظاہری سی بات ہے راحت والا مقام ہے جہاں پہ سب کچھ، اب بھی جو نیک انسان اس دنیا میں امتحان ہے، سب کچھ ہے، جب وہ آخرت میں جائیں گے مرنے کے بعد تو ان کو جنت نصیب ہوگی۔ ایسا مقام ہے جہاں نہ کوئی موت، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی، بس سکون ہی سکون ہوگا۔ تو وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر الگ کر دیا گیا جنت سے، پھر اس کو زمین میں اتار دیا گیا، اور بلا آخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ ظاہری سی بات ہے زمین میں جب آئے تو فساد برپا ہوئے، تو ہر کوئی دیکھیں آج کل اللہ معاف کرے ایک دوسرے کا دشمن ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا تھا، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اب تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو تم جنت سے الگ ہو جاؤ، اور حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، یعنی کہ زمین پہ چلے جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے، یعنی ہر کوئی ادھر ایک مدت تک ہے، تو ہر کسی کے اللہ تعالیٰ نے مدت متعین یعنی کہ ایک مدت مقرر کر دی ہے، کوئی اس سے نہ تو ایک پل زیادہ رہ سکتا ہے نہ ایک پل تھوڑا رہ سکتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ایک مدت انہوں نے مقرر فرمائی تھی، تو کہا کہ آپ وہاں پہ رہو گے اور نفع اٹھانا اور مقدر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں رہو گے نفع اٹھاؤ گے جتنا ان کے مقدر میں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے ہر کسی کا۔ تو جو انسان بھی ادھر رہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ایک مقررہ وقت پر رہے ہیں، امتحان ہے یہ زندگی، اور اس سے نہ تو کوئی زیادہ رہ سکتا ہے نہ تھوڑا رہ سکتا ہے۔ اب یہ انگلش میں ترجمہ، اب ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا دونوں کو، الشیطان و شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کان فیہ، اس میں سے تھے وہ دونوں جس میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بِبَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے واسطے بعض دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک وقت تک۔ فائدہ اس زمین میں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، تو انسان کو ایک مقررہ وقت تک جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اٹھا لو۔ یہ لوگ تو فائدہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کما لے، اتنا کما لیا، اتنی کوٹھی بنا لی، اتنا فلاں کر لے، اتنا فلاں کر لیا، نہیں،
कि क्या फ़ायदा उठाते हैं, क्या अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ते हैं, क्या कुरान पाक को पढ़ के कुरान पाक के साथ खुद जुड़ते हैं और दूसरों को जोड़ते हैं, और क्या नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। ये है फ़ायदा, ये नहीं है इतना कमा लो इतना कमा। जितना भी कमाओगे, हाँ हर इंसान के दिल में हवस होती है जितना भी नेक बन जाए, ये तो एक शैतानी अमल है जो हर इंसान पे हावी होता रहता है, क्योंकि शैतान 24 घंटे एक खून की तरह जिस्म में बहता है। जैसे खून पता नहीं कितनी दफा ब्लड वो हरकत करता है, तो शैतान भी उसी तरह होता है। और जो नेक हैं कोशिश करते हैं कि शैतान से बचे रहें। तफसीर सही बुखारी की रोशन में वसवसा और लग्जिश। सही बुखारी शैतान ने ये शैतान के बारे में बरह रास्त हमला नहीं किया। शैतान जो है उसने बरह रास्त हमला नहीं किया, बल्कि वसवसे के जरिए फैसला आया। अब शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डायरेक्ट जाके हमला नहीं कर, बल्कि वसवसा डाला था। उसने हमला नहीं किया था डायरेक्ट जाके, एक वसवसा, एक वहम, एक गुमान उनके दिल में डाला और उसी ने उनको फिसला दिया। उसने कहा ये एक है, अल्लाह ताला ने तुमको इधर से क्यों मना किया, तुम्हारी जिंदगी 100 साल लिखी, अगर तुम इसके पास जाओगे तो तुम्हारी तो इतने साल हो जाएगी। तो इस तरह उसके वहम आया, वसवसा डाला गया। इंसानों को भी ऐसे तौबा अस्तगफुरुल्लाह अब भी होता रहता है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। अब है 32 हदीस में जिक्र है कि शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है। जो शैतान होता है वो डायरेक्ट आके नहीं उसको पकड़ के कहता है ऐसे कर ऐसा कर, नहीं, वो वसवसा, वो गुमान, वो चीज़ डाल देता है उसके दिल में कि लग्जिश भूले से, और फिर उसमें एक जितना भी ईमानदार हो फिर उसके दिल और दिमाग में अजीब सी वो हो जाती है। मगर इसके नतीजे में उन्हें इस मकाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम राह जन्नत से निकाला गया। तो इसी वसवसे और शैतानी जो उन्होंने लग्जिश डाली थी, तो इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। जो राहत का मकाम था, जो सुकून का मकाम था, उनको वहां से निकलना पड़ा। अल्लाह का जब कहना नहीं माना उन्होंने, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया जिसकी वजह से उनको जन्नत से निकलना पड़ा। दुश्मनी का आगाज, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो से मुराद इंसान और शैतान की अब्दी दुश्मनी है। सही बुखारी हदीस नंबर इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। जो शैतान है और इंसान है, इनकी अब्दी यानी शुरू से एक दुश्मनी है। जब से अल्लाह ताला ने शैतान को हुक्म दिया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया था, तब से वो इंसान का दुश्मन बन गया था कि इसी इंसान की वजह से मुझे अल्लाह ताला ने शैतान बना दिया और निकाल दिया। तो वो उसका दुश्मन बन गया इंसान का। वो तो उसकी शुरू से दुश्मनी है इंसानों से। अब्दी का मतलब है तो इंसान हदीस नंबर इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शैतान, जो शैतान है वो इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है। अब आप लोगों को पता नहीं, जो साइंसदान है उनको पता होगा 1 सेकंड में खून कितनी दफा हरकत करता है। तो खून, जो शैतान है वो भी इसी तरह, जैसे दिल की धड़कन जितनी ये हाथ रखें तो कितनी पता नहीं 1 सेकंड में कितनी दफा धड़कता है दिल, तो ये शैतान भी इसी तरह इसके साथ इंसान के खून में दौड़ता रहता है, जैसे खून में रगों में दौड़ता है इस तरह। और ये दुश्मनी क़यामत तक जारी रहेगी। और इंसान और शैतान की जो जो दुश्मनी है ये क़यामत तक जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी है तो ख़त्म हो जाएगी। ये जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए थे तब से दुश्मन बना था और क़यामत तक ये दुश्मन रहेगा। ये नहीं है कि एक इंसान मर जाता है तो वो छोड़ देता है, नहीं, वो इस दुनिया से तो चला गया। अब तो बस तकफिरला, वो किस हाल में मरा, अगर कोई नेकी की हालत में मरा तो वो तो उसी हालत में, नेकी की हालत में उठाया जाए। अगर कोई गुनाह करते हुए मरा तो बस तकफिरला, सूद खाते हुए मरा, किसी भी बुराई में मुब्तला होते हुए मरा, तो क़यामत वाले दिन तो बस तकफिरला वो उसी हालत में, उसी बुराई की हालत में उठाया जाएगा। अगर हम सोच लें कि हम पता नहीं हमारी सांसें कितनी हैं, कब हमारी आखिरी सांस हो, कब हमें मौत आ जाए, तो हर वक्त नेकी करके सोए इंसान, नेकी करते चले,
बावुज़ू होके चले, नमाज पढ़ के चले, दिल में अच्छाई लेके चले और नेकी की तलकीन करता रहे, तो फिर उसको मौत आती है तो क़यामत वाले दिन भी उसी नेकी की हालत में उठाया जाएगा। तो बस तक पर अगर खुद भी बुराई करते करते दूसरों को भी बुराई का रास्ता दिखाते दिखाते कोई मरता है, तो अब तो खुद तो जो वो बुराई करके मरा ही मरा, उसी हालत में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। और जिसने उसने जिनको बुराई सिखाई, उसका भी तौबा अस्तगफुरुल्लाह अजाब उसी को मिलेगा। अगर कोई इंसान ये सोच के खुद भी अच्छाई करे और दूसरों को भी अच्छाई की तरफ तलकीन करता रहे, तो उसको मौत आती है, तो क़यामत वाले दिन खुद जो अच्छाई कर रहा था उसका भी उसको सिला मिलेगा, और जो दूसरे उसकी वजह से अच्छाई पे चले तो उसका भी उसको क़यामत वाले दिन अजर मिलेगा। अच्छाई मसलन आप किसी को कुरान पाक की तरफ लगा जाते हैं, नमाज की तरफ लगा जाते हैं, किसी भी नेक काम की तरफ लगा जाते हैं, तो वो जो करता रहेगा उसका अजर आपको आपके इस दुनिया में चले जाने के बाद मिलता रहेगा। और जब आखिरत में आप दोबारा उठाए जाओगे इंशाल्लाह और जन्नत में जाओगे, तब भी आपको वो अजर मिलता रहेगा। इसलिए हमें हर कदम पर अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। इसलिए हर कदम पे इंसान को उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला की पनाह में रहे, बुराई से दूर रहे, गुनाहों से दूर रहे, शैतान के वसवसे शैतान के फितने से दूर रहे, और हर वक्त इंसान अल्लाह ताला की पनाह में रहे, और अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी पनाह में रखे। और हमारी और आल औलाद को भी। ज़मीन को अब है आर्जी ठिकाना, ज़मीन को मताल हीन एक वक्त का फ़ायदा कहा गया है। हम इस ज़मीन में आए हैं तो किसी ने हमेशा नहीं रहना, चाहे जितना कुछ कर लो, एक वक्त अल्लाह ताला ने कहा है कि एक वक्त तक आप इधर रहोगे और एक वक्त तक फ़ायदा उठाओगे। ये नहीं है कि हमेशा तुमने इधर रहना है और हमें हमेशा ही फ़ायदा उठाना है। मुकर्ररा वक्त है, उसमें आप जितना फ़ायदा उठा सकते हो। ये नहीं है कि सोने ज़मीनें ये बना लो, गाड़ियाँ बना, नहीं, फ़ायदा ऐसा उठाओ कि आखिरत भी संवार लो इस मुकर्ररा वक्त में, इस ज़मीन में। सही बुखारी हदीस नंबर 6416 में कंधे पर हाथ रख कर फरमाया, हदीस में है 6416 में कि कंधे पर हाथ रख कर फरमाया, दुनिया और वसल्लम आता है कि नबी करीम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर में ऐसे रहो जो तुम मुसाफिर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कंधे पे हाथ रख के फरमाया कि दुनिया में तुम, अब्दुल्ला बिन उमर के कंधे पर हाथ रख के फरमाया कि दुनिया में तुम ऐसे रहो कि जैसे एक मुसाफिर हो, एक आर्जी, पता नहीं, एक मुसाफिर यानी कि पता नहीं जाता है तो उसका सफ़र ख़त्म हो जाता है। इंसान ऐसे इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है कि पता नहीं कब उसकी ज़िंदगी की सांस ख़त्म हो जाए और कब उस पे मौत आ जाए। तो ये एक मुसाफिर है, तो उस मुसाफिर को अच्छा काम करना चाहिए, नेकी की तरफ खुद चलते रहना चाहिए, दूसरों को बुलाते रहना चाहिए। यानी ज़मीन हमारा मुस्तकिल घर नहीं है। ये जो ज़मीन है या ये जो घर है हमारे, या जितनी चीज़ें, ये हमारी मुस्तकिल नहीं है, ये एक आर्जी है। ये एक उतनी वक्त है जितनी अल्लाह ताला ने टाइम लिख के इधर हमें भेजा है कि मैं देखूं ये बंदा इस मुकर्रर वक्त में क्या अच्छाई खुद करता है और क्या दूसरों को बुलाता है। बल्कि एक आर्जी इम्तहान गाह है, ये एक आर्जी इम्तहान गाह है। जैसे बच्चों के पेपर होते हैं, इम्तहान होता है उनका कि वो जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छे मार्क्स लेता है और कामयाब होता है, और जो नहीं तो वो निकम्मा। इस तरह इंसान भी अगर अच्छाई करता है, जो अल्लाह ताला ने जो रास्ते बताए हैं उन पे अमल करता है, कुरान पाक पढ़ता है, खुद भी अमल करता है, दूसरों से भी करवाता है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़े सब, हर वक्त अपने आप को बुराई से बचाए रखता है, तो वो इम्तहान में पास होगा। ये जो इस आर्जी ज़िंदगी में, तो ये एक आर्जी इम्तहान गाह है इंसान के लिए, एक आर्जी इम्तहान गाह है। चांद चाहे कोई 100 साल भी जी ले फिर भी एक लम्हे की ज़िंदगी है। तो इसमें जितना उसने किया वो उसका इम्तहान था। अगर वो अच्छा कर गया तो आखिरत वाले दिन वो कामयाब होगा और वो जन्नत में जाएगा और वहाँ हमेशा की ज़िंदगी जिएगा। अगर उसने कोई बुराई की, गलत काम किए, तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर वो जहन्नम में जाएगा। और साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अगर इस ज़िंदगी में इंसान
शिरक वाले का अल्लाह ताला ने साफ किया उसको कभी माफ नहीं करेगा। अगर वो इस जिंदगी में शिरक करता है तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उसका क़यामत वाले दिन कोई हिसाब किताब नहीं होगा, फिर वो सीधा अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालेगा। अब इंग्लिश में तफसीर।